آذربائیجان میں پاکستان ایسوسی ایشن کی بروقت کارروائی۔ تفصیلات کنٹری ہیڈ آذربائیجان کامران بیگ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں آف کورس، تو یہ ہمارے ساتھ رہتے، تو ان کی نا کل سے رات سے تھوڑی سی طبیعت خراب تھی، تو ان کا نا وہ رات کو بھی ان سے پتہ کرتے جی باکو آذربائیجان میں آج پاکستان ایسوسی ایشن کی ایک اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک پاکستانی حسن نامی جو کہ آئینہ سلطانہ باکو میں ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں، جن کی طبیعت اب کافی بگڑ گئی تھی، وہاں موجود ان کے ساتھی شارون اور شاہد نے بروقت کمیونٹی سینٹر میں اطلاع دی، جس پر کمیونٹی سینٹر کے صدر جناب ڈاکٹر عمران نے بروقت ایکشن لیا اور فوراً ایمبولینس کا انتظام کیا۔ ابتدائی طبی عملے نے فرسٹ ایڈ دی اور ہاسپٹل فوراً منتقل کر دیا، جہاں پر ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیے جا رہے ہیں۔ حسن کا تعلق پشاور خیبر پختونخوا سے ہے۔ پاکستان کمیونٹی سینٹر باکو کے صدر جناب ڈاکٹر عمران صاحب نے 2 پاکستانیوں کی ہسپتال میں ڈیوٹی لگا دی تاکہ بر وقت ان کی اطلاع آتی رہے اور کسی قسم کی ضرورت پڑنے پر فوراً ضرورت کو پورا کیا جائے، جس پر ڈاکٹر عمران صاحب نے کہا کمیونٹی سینٹر باکو اپنے ہم وطنوں کے لیے ہر وقت اور بر وقت مدد کے لیے تیار ہے، جس پر وہاں موجود پاکستانیوں نے حسن کی صحتیابی کے لیے دعا کی اور کمیونٹی سینٹر کی اس کاوش کو خوب سراہا۔ میں ہوں کامران بیگ، اپنی کیمرامین ٹیم کے ساتھ، سہارا نیوز، باکو آذربائیجان۔ ضلع گھوٹکی کی پولیس سیاسی وڈیروں کے اشاروں پر ناچنے لگی۔ اس سلسلے میں میرپور ماترو کے اہل علاقہ نے پولیس اور مقامی وڈیرے شہباز خان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی۔ مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عبدالوحید سومرو۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گھوٹکی ضلع کی پولیس سیاسی ویڈروں کے اشارے پر چلنے لگی۔ اس سلسلے میں میرپور ماتھلو سے تعلق رکھنے والے کولاچی برادری کے سینکڑوں افراد نے میرپور پولیس اور مقامی وڈیرے شہباز خان لنڈ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور سخت نعرے بازی کی۔ مزید موقف لیتے ہیں ان سے، کیا کہنا ہے ان کا۔ 3 تاریخ تے اسلم خان کی حاضری ہوئی میرپور کورٹ میں، جائیں کا پوءِ وہ حاضری ڈئی گھر وञी رहियो، मां जो वकील हुयुसि उन ॾींहुं ऐं वञी रहियो त हाई स्कूल जे गेट ते बेलो मिरपुर SHO ऐं स्टाफ समेत उन्ही खे खणी खंबे गुम करे छॾियो। नाहक परेशान कंदो पियो। असां कुलाची वेलफेयर इतिहाद जे तरफ़ों घणे दफ़ा असां हिते एहतिजाज भी कया आहिनि ऐं असां उन्हनि खे इहा ॻाल्हि ज़ाहिर ज़रूर ॿुधाई बि आहे त असां शरीफ़ माण्हू आहियूं, असां कॾहिं बि कंहिं बि ग़लति कम में इलीगल कम में असां मुलविस न आहियूं, न अॻियां कंहिंजी सपोर्ट बि कंदासीं। असां SHO जेको विंगारू बणियल आहे शहबाज खान लुंड जो, उनखे असां वाज़े तौर ॿुधाईंदा पिया आहियूं त असांजो कंहिं बि मंशियात सां, कंहिं जुआरी सां, कंहिं सां वास्तो न आहे। जुआरियुनि खे पालियो तव्हां, मंशियात खे पालियो तव्हां, मंत्रियूं तव्हां जूं मुक़रर, बुकियुनि ते तव्हां जूं मंत्रियूं, गुत्तनि ते तव्हां जूं मंत्रियूं। کیمرہ مین سعید قمر کے ساتھ عبدالوحید، سہارا نیوز، ڈویژنل بیورو چیف سکھر۔ اہم خبر دیں آپ کو سندھ سے، جہاں ڈھیرکی کے ساتھ ریتی شہر میں جعلی ڈومیسائلز اور PRC بنانے والے آفیسرز کے خلاف احتجاج۔ مزید احوال عبدالوحید سومرو کی اس رپورٹ میں۔ جی آپ کو بتاتے چلیں کہ ریتی سندھ میں غیر قانونی جعلی ڈومیسائل اور PRC بنانے والے افسروں کے خلاف ریتی میں احتجاج۔ تفصیلات کے مطابق سندھ میں جعلی ڈومیسائل بنانے والے افسروں کے خلاف میر جہانگیر خان شہر کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سیاسی سماجی شخصیت کی ریلی میں سندھ میں باہر والے لوگوں کے آبادگاری اور بیرونی صوبوں کے جعلی ڈومیسائل PRC بنا کر غیر قانونی تعینات کرنے کے خلاف احتجاج، جس میں امجد علی شر، عامر علی شر، ارشاد شر، گلزار چاچڑ، سیاسی سماجی سوشل ورکروں اور دیگر نے شرکت کی۔ کیمرہ مین سعید قمر کے ساتھ عبدالوحید سومرو، سہارا نیوز، ڈویژنل بیورو چیف سکھر۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈہراں والا سے۔ بیورو چیف سہارا نیوز چودھری اعجاز کے مطابق ڈہراں والا میں چوری کی واردات کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کے نتیجے میں زمیندار شدید زخمی ہو گیا۔
नवाही गांव 176 मुराद में दिन ढलते ही मशकूक कार पर चोर जमींदार सुल्तान महमूद के बकरे चुराने आए तो सुल्तान महमूद ने शोरो बावैला करते हुए मुजाहिमत की, जिसके नतीजे में चोरों की फायरिंग से सुल्तान महमूद शदीद जख्मी हो गया। इन्हें रूरल हेल्थ सेंटर डहरावाला में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इत्तला मिलते ही डहरावाला पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। SHO मोहम्मद अफजल बाबर खोखर का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे और शहरियों के जान और माल का तहफ्फुज यकीनी बनाएंगे। रूरल हेल्थ सेंटर मोहम्मदपुर दीवान में रात के औकात ड्यूटी डॉक्टर्स गायब। किसी इमरजेंसी या हादसे की सूरत हाल में मरीज रुल गए। आज 7 बजे रोड हादसे में शदीद जख्मी हालत में एक शख्स को रूरल हेल्थ सेंटर मोहम्मदपुर दीवान लाया गया, मगर 2 घंटे गुजरने के बावजूद डॉक्टर्स गायब हैं। हादसे में शदीद जख्मी हालत में शख्स 2 घंटे इंतजार करने के बाद वारिसान प्राइवेट कार के जरिए डेरा गाजी खान रवाना हो गए। जहां पर मौजूद मोहम्मद आरिफ वल्द मलक अब्दुल वाहिद कोमराम औकचक लुंडा के गरीब शख्स ने रोते हुए बताया कि मैं आज दिन 12 बजे से रूरल हेल्थ सेंटर मोहम्मदपुर दीवान में मौजूद हूं। मेरी बीवी मेरे बच्चों को मुकामी रिश्तेदारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। मेरे अहलो जाल जख्मी हैं, मगर ताहाल यहां 12 बजे दिन से ड्यूटी पर कोई लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं है। रूरल हेल्थ सेंटर मोहम्मदपुर दीवान में ऐसे कई गरीब परेशानी का शिकार हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जो से गरीब आवाम रुल गई है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान समेत बिहाड़ी में भी वर्ल्ड एंटी तंबाकू डे मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के पेश नजर कोई तकरीब न हो सकी। माहिरीन सेहत का कहना है कि तंबाकू नोशी 40 बीमारियों का मौजब बनती है। आर्ज़ाए कल्ब के साथ साथ फेफड़े, सांस, खुराक की नाली और मुंह समेत कई कैंसर सिर्फ सिगरेट नोशी के बाइस होते हैं। माहिरीन जरसोमों के बाद सिगरेट को बीमारियों की जड़ करार देते हैं। तंबाकू नोशी से न सिर्फ अपनी सेहत मुतासिर होती है, बल्कि इर्द गिर्द बसने वालों को भी कई बीमारियां लग सकती हैं। खास तौर पर छोटे बच्चे सिगरेट के धुएं से बहुत जल्द मुतासिर होते हैं। एंटी स्मोकिंग डे मनाने का मकसद माशरे में ये शऊर उजागर करना है कि तंबाकू नोशी की आदत अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी एक नुकसानदा अमल है। इससे हर मुमकिन हद तक बचना चाहिए। सिगरेट से मुतालिक अहम तहकीक के मुताबिक एक सिगरेट इतना जानलेवा है कि ये इंसानी जिंदगी के 14 मिनट कम कर देता है। एडनबरा यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक जो अफराद रोजाना एक डिब्बी सिगरेट पीते हैं, इनकी जिंदगी के 7 साल कम हो जाते हैं। आलमी सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में हर रोज 1300 अफराद इससे मुतासिर होते हैं। अगर आप सिगरेट नोशी के आदी हैं तो तंबाकू के नुकसानात के लिए आपको खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार करना होगा, क्योंकि सिगरेट न सिर्फ आपकी जात के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इर्द गिर्द रहने वाले तमाम अफराद के लिए भी मुहलिक है। पाकिस्तान में एंटी तंबाकू डे मनाया जाता है। हुकूमती सतह पर इस तंबाकू नोशी के नुकसानात के लिए मुहिम भी चलाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद इससे मुतासरा होने वालों की तादाद ज्यादा है। हुकूमती सतह पर इसके लिए जामिया कानून साजी की जरूरत है। आज़रबाईजान में 1 जून बच्चों का आलमी दिन जोशो खरोश से मनाया गया। आज़रबाईजान से रिपोर्ट कर रहे हैं कंट्री हेड हारून असलम। जी, आज़रबाईजान से 1 जून बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। इसी हवाले से आज 1 जून बच्चों का आलमी दिन हर साल आलमी सतह पर मनाया जाने वाला दिन आज आज़रबाईजान में भी मनाया गया। आज आज़रबाईजान के दारुल खिलाफा बाकू और दूसरे शहरों में सिलसिलावार तकरीबात का एहतमाम किया गया। आज़रबाईजान बच्चों के आलमी दिन के मौका पर रंगारंग दावत मनाई गए। बच्चे जन्नत के फूल हैं और वो बेहद मोहब्बत, हंसी और खुशी का बास है। यहाँ पर बताते चले आज़रबाईजान बच्चों के हकूक पर बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। मुल्क में बच्चों और नौजवानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अहम मंसूबे चलाता है। बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में काफी संजीदा बुनियादें हैं। 1 जून बच्चों का आलमी दिन मनाने का मकसद भी यही है कि इस दुनिया में अपने बच्चों के लिए महफूज और लुत्फ़ अंदोज़ होने की जगह बनाई जाए और उनको
तमाम हक दिए जाएं जिसके बच्चे हकदार हैं। जी मैं हूं हारून असलम नदीम अपनी कैमरामैन टीम के साथ। विहाड़ी थाना मतरो के नवाही चक नंबर 106 WB में मस्जिद का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया, ताहाल मामला हल ना हो सका। दो बाअसर ग्रुप आमने सामने, नुक्से अमन का खदशा, पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। पंजाब की आला सियासी शख्सियात की मुदाखलत के बाइस जिले इंतजामिया बेबस। जिले अमन कमेटी और इंतजामिया DIC के फैसले पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। विहाड़ी इलाके की अवाम का वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील और एहतजाजी मुजाहिरा। और आपको बताएं, सरदार आतिफ खान मिजारी के कातिल बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मजीद अपडेट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल हामिद। सदकाबाद से एक अहम खबर, सरदार आतिफ मिजारी का कातिल बेटा गिरफ्तार। 3 अजला की पुलिस को झांसा देने वाले आतिफ मिजारी का कातिल बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। गोट की रेम्बिया खान राजनपुर की पुलिस ताकब में थी। पुलिस ने गोट की शहर में नाकाबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। शातिर मुलजम चाचना शरीफ से 2 जाम अदनान को अगवा कर लिया। अदनान को पैसों की जरूरत के पेश नजर अगवा कर लिया गया था। SSP डॉक्टर फरख अली की सरपरस्ती में पुलिस टीम ने वोट की शहर में नाकाबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल हमीद, ब्यूरो चीफ, सहारा न्यूज, सदकाबाद। खबर दें पिंड दादन खान से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर जेहलम सैफ अनवर ने पिंड दादन खान का दौरा किया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद शफीक। जी, पिंड दादन खान डिप्टी कमिश्नर जेहलम सैफ अनवर का दौरा पिंड दादन खान के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों को अपने रवैये तब्दील करना होंगे। SOPs को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। लोग जिम्मेदारी का सबूत दें। कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ दबाव खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। इसके लिए तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद शफीक, सहारा न्यूज, जेहलम। थाना कोट समाबा की हदूद चक नंबर 39 में रिश्तेदारों का रिश्ते के तनाजे पर झगड़ा, एक शख्स कत्ल, 4 शदीद जख्मी। तफसील के मुताबिक यह अफसोसनाक वाकया थाना कोट समाबा की हदूद चक नंबर 39 में पेश आया, जहां पर रिश्ते के तनाजे पर लियाकतपुर से आए हुए रिश्तेदारों को साजिद जट, माजिद जट, फकीर हुसैन जट ने फायरिंग और कुल्हाड़ों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। फायर लगने से मौका पर ही रशीद नामी शख्स कत्ल हो गया, जबकि बशीर अहमद, खालिद हुसैन और घर की 2 औरतें शदीद जख्मी हैं। इन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 ने शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया। पुलिस चौकी तरंडा सवाई खान ने मौका पर पहुंच के मुलजिमान साजिद जट, माजिद जट को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। पिंड दादन खान हुकूमत के मुकर्रा करदा किराएनामे पर अमल न करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ DC जेहलम का एक्शन। मजीद अपडेट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद शफीक। पिंड दादन खान हुकूमत के मुकर्रर करदा किराएनामे पर अमल दरामद न करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ DC जेहलम ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के हर शहरी को चाहिए कि वो SOPs पर अमल करके अपनी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। DC जेहलम की तवज्जो शहर के मसाइल की तरफ दिलाई, जिस पर DC सैफ अनवर ने CEO को फौरी मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए। ट्रांसपोर्टरों की तरफ से इजाफी किराए वसूल करने और SOPs पर अमल दरामद न करने की तरफ से तवज्जो दिलाने पर DC ने AC मियां मुराद हुसैन को फौरी सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद शफीक, सहारा न्यूज, जेहलम। आपको बताएं, हारूनाबाद में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। रेडी रिक्शे की वैन को टक्कर, 1 औरत जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी।
मजीद अपडेट कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इम्तियाज अहमद। जी, हरूनाबाद ट्रैफिक हादसा, IS वैन की रेडी रक्षे को टक्कर, औरत जहां बाग, एक बच्चा समेत 2 अफराद शदीद जख्मी, रेस्क्यू जराए। बहावन नगर रोड नीच खाटा स्टॉप पर IS वैन तेज रफ्तारी के बाद रेडी रक्षे के ऊपर चढ़ गई। रक्षे में मौजूद एक खतून सलमा बीबी सकना 53 फरार मौके पर जहाँ बाग हो गई, जबकि मोहम्मद इकबाल सकना 53 फरार और मासूम 10 साल बच्चा दानिश शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू टीम ने THQ हरूनाबाद पहुंचा दिया। मजीद तफ्तीश जारी। इम्तियाज अहमद, डिप्टी ब्यूरो चीफ, सहारा न्यूज़, हरूनाबाद। नेब टीम का शहबाज शरीफ की रहाइशगाह पर छापे के खिलाफ बिहाड़ी के लीगी कारकुनान भी सरापाए एहतजाज। लीगी कारकुनान का मुस्लिम लीग नून के मंडी ऑफिस में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरे की क़यादत शेख अब्दुर्रहमान, जफर भट्ट और नसरुल्लाह कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने नैब और हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। शेख अब्दुर्रहमान का कहना है कि नैब और न्याजी गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। पूरी कौम कोरोना से जंग लड़ रही है, जबकि सिलेक्टेड वजीर आजम ऐसे हालात में भी सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। शहबाज शरीफ की रहाइशगाह पर छापे के खिलाफ शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। हुकूमत और नैब ओछे हथकंडों से बाज ना आए तो कारकुनान अपने कायद के लिए सड़कों पर होंगे। पत्तोकी में गटरों के पानी ने गलियों और सड़कों को आलूदा कर दिया। गटरों का पानी बाहर आने से नमाजी हजरात सख्त परेशान हैं। मजीद अहवाल देखिए यासर अली की इस रिपोर्ट में। जी, पत्तोकी से खबर देते हैं। पत्तोकी जिसे फूलों का शहर कहा जाता है, पत्तोकी एक इलाका तौहीद टाउन में गंदे गटरों का गंदा पानी बाहर गलियों में नजर आने लगा, जिसकी वजह से नमाजी बहुत परेशान, नमाजी गुजरने से परेशान है। लोगों का मुतालबा है कि पत्तोकी असिस्टेंट कमिश्नर आसफ डोगर साहब से किस चीज़ का नोटिस लेकर फौरी एक्शन लिया जाए ताकि लोगों को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। रिपोर्ट कर रहे हैं यासर अली, सहारा न्यूज़, तस्वीर रिपोर्टर पत्तोकी। स्ट्रैटेजी का अनाउंस की गई थी, जिसमें पाकिस्तान को कहा गया था कि वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो एक नैरेटिव शिफ्ट हुआ इन 2 सालों में, फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम टू पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, टुडे वी बीइंग व्यूड एज पार्टनर्स इन पीस। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जिसका हमें एक्नॉलेज हमें करना चाहिए। तीसरी चीज वो है कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज होना। ये कश्मीर का मसला उतना ही पुराना है जितना पाकिस्तान है, नया नहीं है, लेकिन उसको जिस तरह बाय डिजाइन बैक बर्नर पे रखा गया और इमरान खान साहब की हुकूमत ने और उनकी रहनुमाई में इसको इंटरनेशनलाइज किया गया, वो आपके सामने है। आज कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसको हमने इस्तेमाल न किया हो कश्मीर के नुक्ते नजर, कश्मीरियों के नुक्ते नजर को उजागर करने के लिए, पाकिस्तान के नुक्ते नजर को उजागर करने के लिए। चाहे ह्यूमन राइट्स थे, चाहे वहां जो डेमोग्राफिक चेंज है, चाहे जनाब वहां जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, चाहे ये जो सीज फायर वायलेशंस हैं, जितनी चीजें हैं हमने उनको उजागर किया है। और हिंदुस्तान का जो नैरेटिव था, जिन्होंने पाकिस्तान और उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो जद्दोजहद, उन्होंने उसको तशबीह दे दिया था दहशतगर्दी से। आज नैरेटिव चेंज हुआ है और आज उसको हक के खुद इरादियत का जद्दोजहद कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसके साथ साथ आप देखें कि 1 साल में 3 मरतबा सलामती काउंसिल में कश्मीर का मसला जेर बहस आता है और हिंदुस्तान ना चाहने के बावजूद उसको उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। आप देखें
کہ 2 رپورٹس 2018 میں 2019 میں ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی وہ 2 رپورٹ شائع کرتی ہیں اور جس میں ہندوستان کو پوری طرح ایکسپوز کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس عرصہ میں 4 کشمیر کے جو کانٹیکٹ گروپ ہے OIC کا اس میں 4 نشستیں ہوتی ہیں اور حالیہ جو ہوا ہے جو کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی اس سٹیٹمنٹ کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پوری OIC کی طرف سے اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کے نقطہ نظر کو ان نے تسلیم کیا. ڈیبیٹس اٹھا کے دیکھ لیں آپ, یورپین یونین میں اٹھا کے دیکھ لیں, US کانگریس کی انگیجمنٹس دیکھ لیں, 85 کانگریسمین کی انگیجمنٹ دیکھ لیں, ہاؤس آف کامنز میں جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے ان کشمیر اس کی آپ کاوش دیکھ لیں, ہیومن رائٹس کاؤنسل کو دیکھ لیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور آخر میں آپ عمران خان صاحب کی جو تقریر انہوں نے اقوام متحدہ میں پچھلے سال کی اس کا موازنہ کیجئے تو پچھلے 5 سال میں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی, اس میں کشمیر کا ذکر کتنا تھا اور عمران خان صاحب کا ذکر کتنا تھا. اس سے پچھلے دور میں زرداری صاحب کی تقریر جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی تھی اس سے موازنہ کیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرق کیا ہے. میں آخری پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز. ہم نے کچھ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے ہیں دفتر خارجہ میں, مثال کے طور پر فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل. اس کی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اکیڈیمیا سے, تھنک ٹینک سے ہمیں فریش انپٹ ملے اور جو سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں جس کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہے انہیں بھی انگیج کیا جائے. کرائسس مینجمنٹ 24/7 کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے نیا فورن آفس میں بنایا گیا اور اس کی اپنا ہماری جو اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری ہے اور ہمارا جو NCOC کا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے 478 فلائٹس کے ذریعے 2,14,000 پاکستانی جو سٹرینڈڈ تھے ان کو واپس لایا گیا. خیال تھا کہ وہاں پتھراؤ ہو جائے گا, شیشے ٹوٹ جائیں گے, ایمبیسیز پہ حملہ ہو جائے گا. الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومیسی کا انیشیٹو ہم نے لانچ کیا ہے. ابھی آنر کیا گیا ہے ان 86 پاکستانیوں کو جنہوں نے 79 ممالک میں کووڈ-19 میں اپنی سوسائٹیز میں کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان کے امیج کو انہانس کیا. اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن ایک نیا فورن آفس میں بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے نیریٹو کو پروجیکٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ فورن سروس اکیڈمی, اسٹیٹ آف دی آرٹ فورن سروس اکیڈمی نہ صرف بنائی گئی ہے, اس کا نیا کریکولم ترتیب دیا گیا ہے, اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے انٹو دی اولڈ چائنیز ایمبیسی, وہ ہمیں گفٹ کی گئی اور یہ اربوں روپے کی جائیداد ہے جو فورن آفس کی جائیداد میں ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہاں سے تو اربوں روپے غائب ہوئے یا اربوں روپے کا اضافہ ہوا. اور پھر انسٹیٹیوشن جو ہے ریجنل افیئرس کا اس کو اوور ہال کیا جا رہا ہے اور اس کو نئے پریمیسز میں منتقل کیا گیا ہے. ای ویزا فیسلٹی اور آخر میں FM ڈائریکٹ, یہ ایک ایپ میں نے بنائی ہے اور جتنے فورن آفس کے آفیسز ہیں وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ اس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں, جونیئر سینئر جس کانٹیننٹ میں بھی ہیں, اور ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں, کوئی انپٹ ہے تو ڈائریکٹ مجھے مل سکتا ہے بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کو کاٹ کے. دیز وار سم آف دی انیشیٹوز جو ہم نے لیے ہیں. شکریہ. ہمارے حفیظ شیخ صاحب جو ہمارے ایڈوائزر ہیں آن فائنینس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی. بیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر تھے اور پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0 رہی تھی اور 20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اور ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ پچھلے 1 سال میں آدھے ہو چکے تھے اور ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کو کیسے ڈیفالٹ سے بچایا جائے اور کس طرح اس بحران سے فوری طور پہ نپٹا جائے, کیونکہ جو بنیادی وجہ ہماری جو اس بحران کی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈالرز کا کرائسس تھا
यानी हम 40 अरब डॉलर अगर इंपोर्ट कर रहे थे तो 20 अरब एक्सपोर्ट कर रहे थे, और इसकी वजह से हमारे पे मुस्तकिल एक बोझ था जो हमें एक ऐसी सतह पे ले आया कि हमने बोरोइंग कर करके, कर्ज ले लेकर अपने आप को बहुत कमजोर कर दिया। तो पहली सिचुएशन तो ये थी कि कैसे इस बुरानी कैफियत से निपटा जाए और मुल्क को फिर इस्तेहकाम दिया जाए। इसके लिए आपको पता है कि हुकूमत ने बड़े फैसले किए और IMF के साथ एक ताल्लुक बनाया, एक लैंडमार्क एग्रीमेंट की, जिसकी वजह से फिर जो दुनिया के बड़े दूसरे अदारे थे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और हमारे दोस्त ममालिक सब आगे बढ़े और उन्होंने इस सिचुएशन में हमारी मदद की और हमने रिजर्व्स को अपने इस्तेहकाम दिया, अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को बढ़ाया। हमने जो कर्ज माजी की हुकूमतों ने लिए थे वो पिछले 2 साल में हमने 5000 अरब रुपए के माजी के लिए हुए कर्ज वापस किए, और साथ ही साथ हमने कोशिश की, क्योंकि अगर आप दुनिया की तारीख का मुताला करें तो कोई हुकूमत, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने तरक्की की हो बगैर दुनिया के साथ ताल्लुक बढ़ाए। और इन 2 चीजों में हमारी जो परफॉर्मेंस रही है माजी में वो अच्छी नहीं रही। न हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके हैं, न हम लोगों को कायल कर सके हैं कि वो यहां आके इन्वेस्टमेंट करें। तो इस हुकूमत ने ये फैसला किया कि हमने एक पायदार बुनियाद पे पाकिस्तान को आगे ले जाना है, और हमने बहुत मराद दी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, जो हमाद अजहर साहब आपके साथ शेयर करेंगे। तो उन सब चीजों का नतीजा ये निकला कि ये जो तिजारती बैरूनी खसारा था 20 अरब डॉलर का, उसको कम करके 3 अरब किया गया। और ये एक तारीखी परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की पिछले 2 साल में कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मराद दी गई और इंपोर्ट्स को खुसूसी तौर पे जो लग्जरी आइटम्स है उन पे टैक्सेस लगाकर उसको कम किया गया। अब आप आए कि एक्सपेंडिचर, एक बड़ी वजह हमारे बहरान की ये थी कि हुकूमत जो है खुसूसी तौर पे इलेक्शंस के दौरान हद से ज्यादा इखराजात करते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स भी किए जाते हैं उनमें कोई कॉस्ट की कंसिडरेशंस को आगे नहीं रखा जाता। तो हमने ये पिछले 2 साल जो गुजरे हैं बहुत सख्ती से इखराजात, हुकूमती इखराजात को कंट्रोल किया है, और आपने देखा कि काबीना की तनख्वाहें तक कम की गई, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के हाउसेस के बजट कम किए गए, हत्ता कि फौज की जो इखराजात हैं उनको भी मंजमद किया गया, और सिविल हुकूमत के इखराजात को कम किया गया। और मैं इसके लिए प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी जो डिफेंस की क़यादत है उन सब का शुक्रगुजार हूं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि इतने जबरदस्त तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए और कॉस्ट ऊपर से कंट्रोल किए जाए। ये नहीं कि लोगों की जो देने वाली चीजें हैं उनको रोका जाए लेकिन ऊपर अयाशी चल रही हो। तो हमने जो ये साल गुजरा है इसमें स्टेट बैंक से कोई बोरोइंग नहीं की, कोई कर्ज नहीं लिया। हमने जो ये साल गुजरा है इसमें कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट किसी अदारे, किसी हुकूमती मिनिस्ट्री को नहीं दी। हमने ताकतवर लोगों को नो कहा ताकि हम मुल्क की जो मैक्रो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज करें। और अब आप देखें कि इन तमाम चीजों की वजह से एक जानिब डोमेस्टिक साइड और दूसरी जानिब फॉरेन जो थ्रेट है उनको कंट्रोल किया गया। फिर हमने अपने टैक्सेस के निजाम को बेहतर करने की कोशिश की, और कोरोना वायरस से पहले जो टैक्सेस में बढ़ने की जो रफ्तार थी वो 17% थी। बदकिस्मती से ये कोरोना वायरस की सिचुएशन उभरी और वो जो एक बहुत अच्छी जो है अच्छे अंदाज में हमारी रेवेन्यूज की ग्रोथ हो रही थी वो मुतासिर हुई। अब जब कोरोना वायरस हुई तो पहल हमें 2 चैलेंजेस थे। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का डायरेक्टिव था कि पाकिस्तान के लोग, आम लोग, उनकी जिंदगी एक हद से ज्यादा मुतासिर नहीं होनी चाहिए। तो हमने 1240 अरब का एक कोरोना वायरस के दौरान पैकेज दिया,
और उस पैकेज के कई कंपोनेंट, कई हिस्से थे, लेकिन सबसे जो बड़ा हिस्सा था वो ये था कि पाकिस्तान के आम लोग, भूले हुए लोग जो इससे मुतासिर हो रहे हैं, जिनकी डेली जो जॉब पे काम करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, और जो वैसे ही कमजोर तबके के लोग हैं उन तक फौरी तौर पे कैश पहुंचाया जाए। और आपने देखा कि शायद दुनिया की तारीख का एक बड़ा प्रोग्राम दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि जो 2 साल गुजरे हैं उसमें ये एक सुनहरी चीज हुई है पाकिस्तान की तारीख में कि 250 अरब रुपए लोगों को दिए गए, और पाकिस्तान के हर कस्बे में, हर गांव में, हर शहर में ये दिए गए, और लोगों ने देखा कि ये बिला इम्तियाज दिए जा रहे हैं। इसमें कोई सियासी कंसिडरेशन नहीं, कोई मजहबी कंसिडरेशन नहीं, कोई इलाकाई कंसिडरेशन नहीं। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप क्वालिफाई करते हैं तो ये पैसे आपको मिलेंगे। और 1,60,00,000 लोगों को पैसे मिले, और अगर 6 लोग एक खानदान में हैं तो 10 करोड़ पाकिस्तानियों तक ये इमदाद पहुंचाई गई। और डॉक्टर सानिया निश्तर आपको मजीद डिटेल्स देंगी। लेकिन हमने इन्हें कहा कि जहां तक पैसे की बात है इस मामले में कोई कोताही नहीं होगी। दूसरी जानिब जो बेनिफिशियरी हमने चुने इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए वो पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उनको जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल गिरा दें, क्योंकि हम चाहते थे कि जैसे ही दुनिया रिकवर करे और हमारे लोग, हमारे बिजनेसेस तैयार हों उस रिकवरी से फायदा लेने के लिए, तो हमने कई तरह से उनकी मदद की। उनको बहुत सस्ते लोन दिए गए कि वो अपने लोगों को जो उनके मजदूर हैं उनको दें, ताकि उनको बेरोजगारी की मुसीबत नहीं सहनी पड़े। हमने उनके जो कर्जे जब ड्यू हुए तो वो 1 साल मौखर कर दिए। हमने स्मॉल बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस के बारे में 3-3 महीने उनके बिजली के बिल खुद भरे, और इस तरह की तमाम चीजें की गई ताकि बिजनेसेस जो हैं वो अच्छे अंदाज में आगे बढ़ें। और इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी हमने जो प्रोक्योरमेंट के 280 अरब रखे थे उनको इस्तेमाल किया ताकि आम लोगों के हाथ में पैसे आए और वो मोटरसाइकिल खरीदें, ट्रैक्टर खरीदें, घर बनाएं और दूसरी चीजें खर्च करें ताकि इस मुल्क की इकॉनमी में जान आए। तो अब हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के जो न्यूट्रल लोग हैं, जो फेयर माइंडेड लोग हैं, वो इन चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उसमें आपने देखा कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज है, फिच है, उन्होंने इस चीज को सराहा है। आपने देखा कि IMF के बोर्ड ने इसको सराहा है। आपने देखा कि दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 188% इजाफा किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में। और आपने देखा कि स्टॉक मार्केट ने 47% इजाफा किया है, और ब्लूमबर्ग जो कि एक दुनिया का बड़ा इदारा है उसने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में शामिल किया है। तो ये चीजें जो हैं इनका अब असर आने लगा है। जो हमने बजट दिया उसमें हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जो हमने बजट दिया उसमें हमने हजारों जो खाम माल की चीजें हैं उन पे इंपोर्ट के टैक्सेस सिफर किए, और हमने कहा कि हम अपने मुल्क की जो इकॉनमी है उसको ग्लोबल इकॉनमी से इंटीग्रेट करना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में जो आ रहे हैं, पहला महीना ये नए साल का, माली साल का जुलाई जो गुजरा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे एक्सपोर्ट्स इस महीने में 6% बढ़े। हमारी जो सेल्स हैं सीमेंट की वो 33% बढ़ी। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं सीमेंट की वो 66% बढ़ी। हमारी पेट्रोल और डीजल 8% और 15% बढ़ी। हमारी फर्टिलाइजर 22% बढ़ी। हमारी मोटरसाइकिल्स की सेल 31% बढ़ी। हमारी ट्रैक्टर्स की सेल 17% बढ़ी। हमारी गाड़ियों की सेल 4% बढ़ी। और साथ ही साथ जो रेमिटेंसेस, पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इस महीने में आए, $2.8 अरब।
اور FBR کی کلیکشن 300 بلین ہوئی, جو ان کی انٹرنل ایسٹیمیٹ سے 23 گنا زیادہ ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اسٹاک مارکیٹ نے کورونا وائرس کے بعد 40% سے زیادہ اضافہ کیا. ان سب چیزوں کا اگر آپ ایک کمبائنڈ افیکٹ دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں. عمران خان کی حکومت کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہے؟ صرف ایک, پاکستان کے لوگ. اور ہم نے اگر پیسے خرچ کیے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کے اوپر کیے ہیں. جس طرح میں نے کہا 250 ارب روپے دیے گئے 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں کو.